ابتدا ہے قدیم و قائم و قیوم جناب باری کے نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو ہنا سمی اور طارق عزیز کا سلام پہنچے۔ آنے والے معزز محترم مہمانوں کو خوش آمدید۔ عزیزان من، یہ سورج ہر روز ایک ہی طرح چمکتا ہے، ایک ہی طرح غروب ہو جاتا ہے، چاند چمکتا ہے، ڈوب جاتا ہے، ستارے ٹمٹماتے ہیں، بجھ جاتے ہیں، دریاؤں کی روانی جاری رہتی ہے، دن آتے ہیں، دن جاتے ہیں، دیے جلتے ہیں، دیے بجھتے ہیں۔ کہنا یہ ہے کہ یہ جو کھیل قدرت کا ایک جاری و ساری ہے، اس میں یہ دن بسا اوقات اپنی بعض وجوہات کی بنا پر بعض افراد، اقوام اور ملکوں کے لیے وہ دن بڑا عظیم دن بن جاتا ہے، اپنی پس منظر کی وجہ سے، اپنی تاریخ کی وجہ سے۔ آپ میں سے بہت سی آنکھیں ابھی زندہ ہوں گی جنہوں نے 6 ستمبر 1965 کو وہ مناظر دیکھے کہ جب بزدل دشمن نے رات کی اندھیری رات میں 3:45 پر لاہور کے واڈا بارڈر کو کراس کرنے کی کوشش کی اور پاکستان پر حملہ کر دیا تھا۔ یہ 1965 کی میں بات کر رہا ہوں۔ ابھی ٹیلی ویژن کو وجود میں آئے ہوئے پاکستان میں 1 سال کے قریب ہوا تھا۔ اتفاق ہے کہ میں اس وقت ٹیلی ویژن کا پہلا نیوز کاسٹر اور پہلا اناؤنسر بننے کا اعزاز مجھے حاصل ہوا۔ یہ قدرت کی دین ہوتی ہے۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، میری جگہ کوئی بھی ہو سکتا تھا۔ بہرحال میں نے اپنی آنکھوں سے اس لاہور کو جہازوں کی زد میں دیکھا اور ہماری ایئر فورس ہمیں پیغام دیتی تھی ٹیلی ویژن پر کہ لاہوریوں سے کہیں کہ یہ اپنے گھروں میں رہیں، دشمن کے جہاز ہماری زد میں ہوتے ہیں لیکن ہم ان پر گولی نہیں چلاتے کہ کہیں لاہوری زخمی نہ ہو جائیں۔ اور یہ لاہوریوں کا یہ کام تھا کہ جس طرح بسنت میں کوئی پتنگ کٹتا ہے اور شور مچتا ہے کہ بو کاٹا، تو اسی طرح جب ہندوستان کا کوئی جہاز گرتا تھا تو پورا لاہور اس گرتے ہوئے جہاز کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ کہیں تو یہ گرے گا تو جا کے دیکھیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جن پر آج کم و بیش 43 برس سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے۔ اتنا پانی پلوں کے نیچے سے بہہ چکا ہے۔ بہت سی یادیں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ 17 دن کی اس جنگ میں پاکستان کے جوانوں نے، پاکستان کی افواج نے، پاکستان کے مزدوروں نے، کسانوں نے، طالب علموں نے، وکلاء نے، پروفیسروں نے، ہر شخص نے جو جہاں تھا اس نے اپنے اپنے محاذ پر اپنے تمام اختلافات کو بھلا کر پاکستان کی مدد کی۔ میجر عزیز بھٹی یہاں ہمارے لاہور کے سرحد پر ہی شہید ہوئے، 7 دن تک دشمن کا مقابلہ کرتے رہے۔ کہنا یہ ہے کہ یادیں تو بہت سی ہیں۔ آپ بھی 6 ستمبر کے اخبارات پڑھیں گے تو وہ تاریخ آپ تک پہنچے گی۔ میں بہت سی باتوں کا چشمدید گواہ ہوں، لیکن اب بھولتے جاتے ہیں ماضی کے دیار، یاد بھی آئیں تو سب یاد کہاں۔ میں نے صرف ایک گزارش کرنی ہے کہ جس طرح ان 17 دنوں میں پاکستان کے ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے
यकजहत होकर अपने वतन अजीज की हिफाजत की थी, उसी तरह आज भी आपको यकजहत होकर पाकिस्तान जिन मसाइल से दो चार है उन मसाइल को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल यह है जी कि इन्फेंट्री एक फौजी इस्तिलाह है, इससे क्या मुराद ली जाती है? इन्फेंट्री जी, पैदल फौज को इन्फेंट्री कहा जाता है। आइए, सवाल आज बड़े आसान है आपके लिए। बहरिया के जहाज के कमांडिंग ऑफिसर को क्या कहा जाता है? कैप्टन। कैप्टन तशरीफ लाएं। यौम पाकिस्तान के मौके पर फ्लाई पास्ट की क़यादत कौन करता है? वो जो यौम पाकिस्तान पर तमाम अफवाज अपनी परेड और असलहा और जो भी दिखाए जाते हैं, तो वो जहाज भी सलामी देते हैं, उस फ्लाई पास्ट की क़यादत कौन करता है? कमांडर इन चीफ। फजाइया का कमांडर इन चीफ जो होता है वो क़यादत करता है फ्लाई पास्ट में। आइए जरा जहन पर जोर दीजिए कि 1965 की पाक भारत जंग में कितने निशाने हैदर दिए गए? सुन लीजिए, एक निशाने हैदर दिया गया था। जवाब दुरुस्त है, तशरीफ लाएं। जी, आप दोनों खवातीन ने जिप्सी अमेजिंग क्रीम के सवालात के जवाब दिए। खूबसूरती के लिए जिप्सी अमेजिंग क्रीम, उन्होंने आपके लिए कैश किताब का तोहफा भेजा है और आपके लिए भी कैश किताब का तोहफा है। जी, आप दोनों मेहमान हैं वाइटल चाय बनाने वालों के। वाइटल चाय ने आपके लिए अपने तोहफे भी भेजे हैं और चाय का शौक है। अच्छा, आप पीजिएगा फिर। ये तो आपका कैश किताब भी आपकी, कैश किताब आपकी और वाइटल चाय के ये तोहफे आपके। बिस्मिल्लाह। ख़वातीन व हज़रात, वाइटल चाय बनाने वालों ने ये कार भेजी है। ये नई कार आई है, पिछली कार तो जीतने वाले जीत गए। आज इसका 5वां प्रोग्राम है और हमने वो शर्त हटा दी है कि जिन्होंने कभी एक कार जीती थी वो दोबारा हिस्सा नहीं ले सकते। तो अब वो लोग भी दोबारा, कोई 5 साल के बाद, कोई 4 साल के बाद फिर किस्मत आजमाई के लिए आए हैं। अपना तारुफ करवाएंगे कि क्या जीता, क्या हारा, कब? हाफिज रिजवान अहमद मेरा नाम है। 1997 में यहाँ से मैंने मोटरसाइकिल जीती थी और 2005 में गाड़ी जीती थी। 1997 में मोटरसाइकिल और 2005 में गाड़ी। जी, मेरा नाम शहबाज है और पिछले साल जनवरी 2011 में मैंने मोटरसाइकिल जीता था। कार तो नहीं जीती? कार? नो सर। मेरा नाम अयूब मंजर है, मैंने 2006 में मोटरसाइकिल जीती थी। कार नहीं। मेरा नाम अमानत अली है, मैंने 17 साल पहले एक मोटरसाइकिल जीती थी और 3 साल पहले एक जीती थी। ये चारों मेहमान हैं जी, आज आए हैं। वाइटल चाय बनाने वालों की कार है। 5वां प्रोग्राम। वाइटल चाय बनाने वाले ईस्टर्न प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड अपना पैगाम देते हैं। दुनिया की बेहतरीन चाय की पत्तियों के ब्लेंड से जो दे भरपूर मजा। अब मिले आपको वाइटल चाय के नए पैक में, हर घूंट में वही महक, खुशबू और ताजगी लिए। मोहम्मद शहबाज, आपकी बारी जी। जराइम की मलिका किस अदीबा को कहा जाता है? सॉरी सर। अगाथा क्रिस्टी को जराइम की मलिका कहा जाता है। उसकी कहानियां जुर्मों के बारे में ज्यादा उसने लिखी हैं और मशहूर हैं जी। जी, सवाल यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में टांडा डैम किस दरिया पर बनाया गया?
वक्त महदूद है जी। दरियाए कोहाट पर गलती, आपने गालिबन दोनों गलतियां की हैं, आपका कोई नंबर नहीं है जी। मेरे तीसरे मेहमान हैं अयूब मंजर, आपकी बारी। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, अब्दुल रहीम खान खाना मौजूदा पाकिस्तान के किस शहर में पैदा हुए? लाहौर। शहर लाहौर तेरी रौनक के दाएम आबाद, लाहौर। 100 नंबर जी। आपसे दूसरा सवाल है वाइटल चाय की कार के लिए। रोशनी तो मुस्तफा जैदी का मजमुआ कलाम है, ये बताइए रोशनी ए रोशनी किसका मजमुआ कलाम है? सलीम अहमद। सलीम अहमद। उसका शेर है कि जरा न मोम हुआ प्यार की हरारत से, चटक के टूट गया दिल का सख्त ऐसा था। ये है जी शकेब जलाली, आपके 100 नंबर हैं जी और एक गलती आपने की है जी। आपकी बारी है जी अमानत अली साहब। खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के बाद तुर्की का इक्तदार किसने संभाला? अब्दुर्रहमान अव्वल। अब्दुर्रहमान अव्वल, वो थे अतातुर्क मुस्तफा कमाल पाशा। गलती हो गई, द गलती गुंजाइश निश्ता। वाइटल चाय की कार के लिए आखिरी सवाल, मखलूत तालीम का, को एजुकेशन जिसे आप कहें, मखलूत तालीम का आगाज किस मुल्क से हुआ था? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। जवाब दुरुस्त है, 100 नंबर आपके हुए। जरा अनाउंस कर दें किसके कितने नंबर हैं। हाफिज रिजवान अली, आपने 200 नंबर लिए, आपने कोई गलती नहीं की। मोहम्मद शहबाज, आप नंबर नहीं ले सके। अयूब मंजर, आपने एक सवाल का जवाब दिया, लिहाजा आपके 100 नंबर हैं। अमानत अली, आपने एक गलती की, आपके भी 100 नंबर हैं जी। तो तशरीफ लाएं हाफिज रिजवान। मैं इसको घुमाऊंगा तो फिर आपने इससे आगे नहीं आना, ठीक है जी। ये जहां वाइटल है इसके 100 नंबर हैं जी, और ये सुर्ख लकीर खतरे की है जी। 18, 40, 50, 7 ये माइनस नंबर हैं जी। 2 चांस आपके पास हैं, अगर यहां ना लगा और गिर गया तो आपका चांस खत्म हो जाएगा वो जी। -18 दूसरा चांस। तीस नंबर जी, 30। वाइटल चाय की कार और आपने अभी तक कोई नंबर हासिल नहीं किया जी। 100। साठ नंबर 60 जी। 41 नंबर हैं जी आपके। 41 दूसरा चांस। 49 49 आपके 100 नंबर हैं सवालों के, किस्मत आपकी अपनी है जी। 16 नंबर हैं जी। शाबाश। 40 मनफी -40। हाफिज रिजवान आपके 212 नंबर हैं। अयूब मंजर आपके 190 नंबर हैं। आप दोनों का इंतखाब होता है। मोहम्मद शहबाज आपके 160 नंबर हैं और अमानत अली साहब आपके 76 नंबर हैं। तो आप दोनों को वापस जाना होगा
اور ان دو ساتھیوں کا انتخاب ہوتا ہے. اب جب سیمی فائنل وغیرہ کوارٹر فائنل ہوں گے تو دیکھا جائے گا. بہرحال وائٹل چائے بنانے والوں نے آپ چاروں دوستوں کے لیے اپنے تحفے کیش اور کتاب بھیجا ہے. یہ آپ کے ساتھ جائے گا جی. بسم اللہ. جی